Dear students, our today's topic is the play that we were discussing previously in our lecture, and we have discussed almost 4 to 5 pages. Now we are going towards the next one. Previously, we discussed that Mr. Corey, the doctor scientist who had invented something very important that is very important to warfare and that would revolutionize warfare activities. He is telling about all that his sister, Mrs. Meldon, whereas Mrs. Meldon's son was killed in war activities on the same day, and that day is also the anniversary of Mrs. Meldon's son. So when he started talking about that war activities, all of a sudden he came to know that it was not important, it was not suitable just to tell the things Mrs. Meldon on the day. And in response, in reply, Mrs. Meldon was saying, I don't mind. From here, we are going to start right now. I don't mind, Henry. And after all, the war office isn't the war. And she was trying to avoid that, we should say that, um, whatever that despise, that disliking for war. And she was trying to say that Mr. Corey was talking about war activities, and he was talking about war office that he had to tell about his invention, the war office, the war ministry, and so Mrs. Meldon was telling him that it was not something annoying or uh, you should say that displeasing to her. Corey, no, that's true. Mrs. Meldon, where's your invention, Henry? No, she was asking about the invention. We can look at the text that is present before us. Corey, Charlotte, there is something interesting to talk about. Hannah enters with a tea tray. Hannah, here is the tea, sir. Uh, Corey, damn. Oh, all right, put it down there. Hannah arranged the tea tray in front of Mrs. Meldon. The professor, meantime, is back at his table and is his retort and his formula. No, and again he exclaims to himself, Mrs. Meldon, has everything been all right, Hannah? Hannah, yes, ma'am, Gaj. Gaj is the name of the driver. Sorry, that is the name of the gardener. The gardener brought up the wreath you ordered for the war memorial, ma'am. I've got it in the kitchen now. Shall I fetch it for you? तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि गार्डनर जो है वो एक फूलों का हार टाइप एक दस्ता जो है वो लेके आता है दैट इज टू बी प्लेस्ड ऑन द ग्रेव ऑफ एडी दैट इज द सन ऑफ मिसेस मेल्डन एंड इट वाज द एनिवर्सरी ऑफ we should say that Addie who was killed in the war. So that was brought, and then Hannah, having finished with the tea table, goes out. Hannah is the name of the servant. Mrs. Meldon, come and have your tea, Henry. Corey, all right, but he does not stir, but he does not move. He does not, he is not motivated. He is not, we should say that, moved. And then he comes towards Mrs. Meldon, come along, Henry. Corey, oh, all right, in a minute. No, we can look at doctor's work that he is too much involved, he is too much engrossed in his work while he is present around, and he is not taking care of all that. Rather, he is engrossed in his activities. Then doctor's sister once again says him to take tea, and she also says to him that it would be cold in a minute, and if he doesn't come, Mrs. Meldon, come along, Henry. Corey, uh, oh, all right, in a minute. Mrs. Meldon, your tea will get cold if you don't come now. Corey, getting up and coming to the tea table. Oh, how women do first. अब यहाँ पे कॉरी जो है उसको एक तरह से क्रिटिसाइज करता है कि वुमेन किस तरह से एक्साइटमेंट क्रिएट करती हैं, हाउ डू दे एक्साइट द थिंग्स. योर सेक्स इज मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी, शार्लेट ऑलवेज विलिंग टू ब्रेक ऑफ थिंग्स for other things, no application, no concentration, no capacity for complete impersonal devotion. यानी वो उसको एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहा था कि ख़वातीन को किसी काम पे अप्लाई करना नहीं आता,
और किसी किस्म की अपनी पर्सनैलिटी के अलावा वो किसी काम के लिए डिवोटेड नहीं होती या लॉयल्टी शो नहीं कर सकती। और इसी तरह से आगे वो उसको कह रहा था, दैट्स व्हाई नो वुमेन हैव एवर बीन ग्रेट आर्टिस्ट और साइंटिस्ट। These are just sentences that he is criticizing, but it is actually not the reality. Women have been, of course, scientists and artists because they will not forsake everything and follow. Well, whatever it is they ought to be following. और यहाँ पे वो उसको कह रहा था कि उन्हें फॉलो करना चाहिए रूल्स को। Hannah returns carrying a bunch of flowers to which a label is attached. Hannah, here it is, ma'am. Corey, what is that? Mrs. Meldon taking the flowers from Hannah. I ordered it from Gage and to put on the war memorial. It is for Addie. तो यहाँ पे पता चलता है कि वो फूलों का गुलदस्ता जो है उसकी ग्रेव पर रखने के लिए, एक मेमोरियल के ऊपर रखने के लिए, एक यादगार के तौर पर कौरी। और यस यस मिसेस मेल्डन, आई शैल टेक इट डाउन देयर आफ्टर टी, हियर आफ्टर टी, विल यू कम विद मी। और फिर मिसेस मेल्डन जो है वो अपने भाई से पूछ रही है कि क्या वो उसके साथ आएगा। कॉरी, आई वुड लाइक ऑफ कोर्स बट आई रियली मस्ट फिनिश अप दिस थिंग्स। मिसेस मेल्डन, वेरी वेल हेनरी, टू हाना, थैंक यू हाना, आई विल कीप द फ्लावर्स हियर। Exit Hannah, Mrs. Meldon to her brother. They are very beautiful, aren't they, Henry? Corey, oh yes, quite nice. You know, Charlotte, this invention of mine. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बार बार मिसेस मेल्टन जो है वो अपने बेटे के बारे में बात कर रही है या अपने बेटे की डेथ के बारे में बात कर रही है, फूलों के गुलदस्ते के बारे में बात कर रही है, लेकिन उसका भाई हमेशा इन्वॉल्व होता है, एनग्रॉस्ड होता है, कम्प्लीटली लॉस्ट होता है अपने वर्क में, और एकदम से चौंक कर जो है वो उसका जवाब देता है। और रादर हम ये कह सकते हैं कि एक तरह का सेल्फिश और केयरलेस एटीट्यूड शो कर रहा है, जिसमें वो अपनी इन्वेंशन के बारे में ही बात करना चाहता है, इसके अलावा उसको कोई और बात करना नहीं आ रही। कॉरी, ओह यस क्वाइट नाइस, यू नो। तो यहाँ पे चौंक कर एक दफ़ा वो इस तरह के जवाब देता है, मेल्डन विल यू हैव सम मोर टी हैनरी, मेल्डन विल यू हैव सम मोर टी हैनरी। कॉरी, वेगली, वेगली का मतलब होता है कि अनक्लियरली वो अपने ख्यालात में, अपने थिंकिंग्स में लॉस्ट है और एक तरह से उसको जवाब दे रहा है। देन डेफिनेटली यस, हाफ अ कप। He hands the cup to her and she fills it and returns to him while the following speeches are uttered. Corey, I was saying this invention of mine will revolutionize warfare. अब यहाँ पे क्लियर होता है कि उसके इन्वेंशन जो है वो बेसिकली किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी वो अपने वारफेयर को रेवोल्यूशनाइज करना चाह रहा है, अपने जंगी जो उसके हरबे होते हैं, जंगी स्किल्स होती हैं यानी वार स्किल्स होती हैं, उनको एक तरह से रेवोल्यूशनाइज करना चाह रहा है अपनी उस इन्वेंशन से। और वो इन्वेंशन क्या है, वी शैल कम टू नो अबाउट इट लेटर एज डॉक्टर इज नॉट टेलिंग दैट इन्वेंशन एट दिस टाइम। मिसिस मेल्डन, विल इट अबॉलिश वॉरफेयर। अब यहाँ पे मिसेस मेल्टन की जो approach है that is quite different from that of her brother Corey. Corey is trying to invent revolutionize warfare whereas she is thinking about abolishing it, यानी वो warfare को ख़त्म करना चाह रही है, यानी जंग को abolish करने के ख्याल से सोच रही है, जबकि वो उसको revolutionize करना चाह रहा है, यानी मज़ीद उसको improve या उसको better करना चाह रहा है warfare को। That is not actually the progress as the title shows. कॉरी, अबॉलिश वॉर माय डियर शार्लेट, डोंट बी चाइल्डिश। अब वो उसको कह रहा है कि अबॉलिश वॉर यानी जंग को ख़त्म कर देना, गिव अप करना। माय डियर शार्लेट, डोंट बी चाइल्डिश, उसको कह रहा है कि बच्चों की तरह बिहेव नहीं करो। मिसेस मेल्डन, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट, इट सीम्स टू मी मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। हैनरी, you don't realize how deeply women like me feel about this organized butchery of boys. Look at me, I had a husband and a son when the war began. बुचरी से मुराद है यहाँ पर स्लॉटरिंग करना यानी ज़िबा करना। तो मिसेस मेल्टन ये कह रही थी कि एक तरह से ये एक ऑर्गेनाइज्ड, एक मुनज़्ज़म लड़कों को यानी बॉयज़ को ज़िबा करना, उनको मारना, किल करना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू हर। आई हैड नाइदर व्हेन इट वाज ओवर, आई एम मोस्ट लोनली वुमन क्रूली अलोन। तो यहाँ पे वंस अगेन शी वाज सेइंग दैट कि जब जंग स्टार्ट हुई तो उसका एक बेटा और उसका हस्बैंड था, लेकिन जंग के बाद दोनों की डेथ हो गई, बोथ ऑफ देम वर नॉट प्रेजेंट एंड शी वाज द मोस्ट लोनली वुमन। Corey, a little annoyed but by what seems to him sentimental harping on the one string. अब कोरी के लिए यानी उसका अपना एटीट्यूड इस तरह का है कि उसको ऐसा लगता है कि ये एक ही बात को बार बार कह रही है, एक ही बात को रिपीट कर रही है, सेम सेंटिमेंटल मीन इमोशनल किस्म की बातें जो है, हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग मीन के एक ही बात को रिपीट करते रहना, एक इडियोमेटिक फ्रेज है। आई नो ऑफ कोर्स, एक इमोशनल पॉइंट को रिपीट करना, आई नो ऑफ कोर्स दैट द वॉर हिट्स यू वेरी बैडली। Charlotte, what with Addie being killed and Tom taking his death so badly, Mrs. Melton, Tom died of broken heart. Henry, that may sound sentimental and unscientific to you, but it is true.
I sometimes wonder why I was not granted the mercy of death, why I should be compelled to live on alone. तो अब मिसेस मेल्टन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ग्रीव्ड है। शी इज सेइंग दैट कि उसको भी डेथ आ चुकी होती, उसको डेथ क्यों नहीं देगी, और एक तरह से वो क्यों अकेली वहाँ पर रह रही है, लिव ऑन अलोन, अपने अपने आप पर डिपेंड करते हुए अकेले उसको रहना पड़ रहा है। दैट इज़ वेरी क्रूअल अकॉर्डिंग टू हर। शी इज़ टू मच ग्रीव दैट शी वॉन्ट लिव, she won't like to live alone because of the death of her son and husband too. Her husband died because of the shock, because of the grief of the son, and he died of broken heart, of course, as mentioned here. Corey, oh, come, Charlotte. No, no, not alone. You are happy enough with me, aren't you? Your only brother, Mrs. Meldon. You are not a very good substitute for son, Henry. And Mrs. Meldon जो है बहुत critically, बहुत sharply, and we should say that in a very strict way, in a sharp way, she was saying that it was not good for her that she was the sister of him. और वो उसको ये कह रही थी कि डॉक्टर कॉरी जो है वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है एक सन का, क्योंकि हिज अप्रोच वाज क्वाइट सेल्फिश, क्रूअल, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट वार, वेयर एज शी वांटेड टू क्विट वॉर एक्टिविटीज. Cory, well, no, I suppose not, but still there is no need for despair. Let me tell you about my invention. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कोरी अगेन एंड अगेन अपने इन्वेंशन के बारे में बात करना चाह रहा है, और उसको अपनी सिस्टर के दुख से या उससे कोई गर्ज सच नज़र नहीं आ रही, यानी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. ही वांट्स टू टॉक अबाउट हिज इन्वेंशन. He puts his cup down and prepares to explain. Mrs. Meldon, will you have some more tea? Corey, no thanks. No, Charlotte, when I say that war ought to be revolutionized, I mean that it ought to be made more expeditious. We we have just had lasted for a ridiculous period, 5 years or nearly 5 years, perfectly preposterous. It ought not to have lasted more than 5 weeks. अब यहाँ पे वो ये बात करना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है, शार्लेट को बताना चाह रहा है कि जब वो वार को रेवोल्यूशनाइज करने की बात करता है तो वो उसको रेवोल्यूशनाइज इस सेंस में करना चाह रहा है कि उसको वो स्पीडियर बनाना चाह रहा है, उसको ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा तेज़ करना चाह रहा है ताकि वो वार जल्दी ख़त्म हो और कम्प्लीटली विद इन शॉर्ट टाइम उसका एंड हो. और उसके अकॉर्डिंग ये जंग जो कि ज़्यादा देर कंटिन्यू करती है, दैट इज़ प्रीपोस्टरस, मीन दैट इज़ अननेचुरल, दैट इज़ एब्सर्ड, कि एक जंग को ज़्यादा देर तक कंटिन्यू रहना चाहिए. इट और नॉट टू हैव लास्टेड मोर देन 5 weeks. मिसेस मेल्डन, अब यहाँ पे हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव में ये प्ले जो है कंपोज किया गया ऑफ कोर्स. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यू नो दैट 5 year to 6 year almost continually, 1914 to 1918, that was the official period for its continuity, but even it continued more than that time. Mrs. Meldon, have you invented a means of restricting the duration of war? अब मिसेस मेल्टन जो है उसको पॉजिटिव सेंस में कंसिडर कर रही है. वो ये सोच रही है कि शायद उसके भाई ने, डॉक्टर ने, कोई ऐसा तरीका ईजाद किया है जिससे वार जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, महदूद हो जाएगी, उसकी ड्यूरेशन जो है बहुत कम हो जाएगी. Corey, well, yes, I think you might put it like that. What the combatants ought to aim at in war is to get the first blow in so hard that the other side immediately succumbs to it. अब यहाँ पे वो बताता है, कॉरी बताता है उसको कि उसने एक ऐसा तरीका ईजाद किया है जिससे कम्बेटेंट्स से मुराद है, यानी उसके जो मुकाबला करने वाले हैं, कम्पेटिटर्स हैं, जो राइवल्स होते हैं या जो फाइट कर रहे होते हैं, पार्टनर्स, वो इतना ज़्यादा जो है उसको एक सीरियस वे में करेंगे कि एक पार्टनर इतना सीरियसली या इतना हॉरिबली अटैक करेगा दूसरे पार्टनर पर कि वो उसको गिव अप कर देगा, यानी उसके सामने रेजिस्ट नहीं कर सकेगा, यानी दूसरे पार्टनर को क्विट करना पड़ेगा, हार मानना पड़ेगी. इसका हमसे मुराद होता है गिव अप करना, रेजिस्ट करना, छोड़ देना. मिसेस मेल्टन, आई सी, आई अंडरस्टैंड. Corey, that means that the weapons of war must be made immeasurably more horrible and devastating than they now are. अब कोरी इसको बताता है कि इसका मतलब ये है कि हमें वार के जो
वेपन्स हैं उनको इतना हॉरिबल, ख़तरनाक बनाना है, इतना डिस्ट्रक्टिव बनाना है, डिवोस्टेटिंग बनाना है कि वो इमेजरेबली यानी लिमिट से भी ज़्यादा इम लिमिटलेसली दैट दे शुड बी वेरी हॉरिबल एंड डिस्ट्रक्टिव. Mrs. Meldon, more horrible? Is that possible, Corey? Yes, oh yes, we haven't yet reached the limits of horror in वार. ओ डियर मी नो. अब वो उसको बताता है कि हम अभी तक लिमिट्स तक नहीं पहुंचे. वार के हॉरर्स जो हैं वो इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं. मिसेस मेल्टन, माई सन वॉज 19, Henry, and he was killed in a fight for which he knew very little. That seems to me a horrible thing, Corey. Oh, a mother's feeling, of course, but look at the matter from a broad point of view. Put your own feeling aside. अब यहाँ पे कॉरी जो है मिसेस मेल्टन को कन्विंस करने की कोशिश करता है, उसको ये कहने की कोशिश करता है कि उसको एक मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हट कर सोचना चाहिए. ऑफ कोर्स दोज वर द फीलिंग ऑफ अ मदर whose son had been killed in war activities, and she should take a broad point of view. यानी उसको एक वसी नुक्ता नज़र लेना चाहिए, एक वसी पॉइंट ऑफ व्यू सोचना चाहिए जंग के बारे में, और अपने फीलिंग्स को एक साइड पर रखना चाहिए. ही वॉज अ साइंटिस्ट एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज वी शुड से दैट फेम, हिज इन्वेंशन, बट ही वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द फीलिंग्स, or we should say that sentiments of a mother. Mrs. Meldon, I can't do that, Henry. The whole war for me comes down to this one thing, that my son, a boy new from school, was taken away from me just when his life was beginning to open out and killed. I am not a clever woman, Henry. I can only feel things as they touch me and mine. Harry was my only son, my darling, my heart's joy. I expected so much from him, and he is gone, and there's nothing, nothing, nothing. अब वो यहाँ पे उसको बता रही है कि एडी उसका सन था, और जब ही वाज गेटिंग मैच्योर, ही वाज जस्ट ग्रोइंग, तो उसके बेटे को उसके पास से ले जाया गया. मीन ही वाज अवे फ्रॉम her, and he went to war, and it was very cruel, it was very grieved, it was very sorrowful to her, Corey, being very gentle with her. Yes, I know, Charlotte, but you really ought not to dwell too much on your sorrow. It isn't good for you. You ought to take broad point of view. Imagine yourself a statesman. अब यहाँ पे उसको वो एक ग्रीडी पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको कन्वे करने की कोशिश कर रहा था. दैट वाज एक्चुअली फॉर हिमसेल्फ. अब वो उसको ये कह रहा था कि आप यानी अपनी सिस्टर को ये कह रहा था दैट शी शुड टेक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू एंड इमेजिन हर सेल्फ टू बी अ वेल्दी मैन, अ वेल्दी वुमन. तो वो उसको ये कह रहा था कि स्टेटस मैन से मुराद जहाँ पर वेल्दी वुमन है कि उसको एक दौलतमंद खातून के तौर पर अपने आप को, या एक दौलतमंद आदमी के तौर पर अपने आप को सोचना चाहिए. मिसेस मेल्टन, इफ हैरी हैड बीन अ स्टेटस मैन ही वुड नॉट हैव गॉन टू द वॉर. अब वो उसको ये बताती है कि अगर वो वेल्दी मैन होता शायद वो जंग की तरफ ना जाता, ही वुड हैव कंपेल्ड सम अदर पर्सन टू गो. अब यहाँ पे मिसेस मेल्टन जो है वो एक ह्यूमनिज्म, or we should say that humanitarian approach जो है कन्वे कर रही है. And she is saying that if he had been wealthy man, as Dr. Corey was saying, he must have compelled some other persons to go to war and continue killing uh, other people, other boys. ओह नो, डोंट बी बिटर. अब वो उसको यहाँ पर यानी उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई बात नहीं है करने के लिए, तो वो उसको कहता है डोंट बी बिटर शार्लेट, डोंट बी बिटर. यानी उसको तल्ख नहीं होना चाहिए, उसको इतना सख्ती नहीं एक्वायर करनी चाहिए. मिसेस मेल्टन, माय डियर हेनरी, आई एम बियॉन्ड बीइंग बिटर. डू यू नो व्हाट आई डिस्कवर टुडे? अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो कि पहले नहीं था. मिसेस मेल्टन को एक और पॉइंट का पता चलता है कि उसने एक बात उसको डिस्कवर हुई है, उसको रिवील हुई है एक बात दैट शी डिडंट नो बिफोर दैट. Mrs. Meldon, you know, I've never really known for Ari died. I found out today. Corey, I wish you wouldn't think so much about it. Mrs. Meldon, with sudden passion, with sudden feeling, I must think about it. I can't help thinking about it. I met a young man in town today who had been in the same battalion as Ari, and he told me about it. Poor lad, it slipped out before he realized that I hadn't known before. अब यहाँ पे मिसेस मेल्टन को आज अपने बेटे की डेथ के बारे में इन डिटेल पता चलता है कि एक आदमी जो कि उसकी बटालियन से था, सेम सेम बटालियन से एज एडी बिलोंग द बटालियन, तो उसने उसको बताया कि एडी की डेथ किस तरह से हुई, और एक तरह से वो अपने मुंह से ये अल्फाज निकाल बैठा था. ही शुडंट हैव टोल्ड, ही शुडंट हैव टोल्ड मिसेस मेल्टन, बट वर्ड स्लिप्ड आउट ऑफ हिज mouth.
एंड उसने उसको बताया था। तो एक्चुअली हमें ये पता चलेगा कि बेसिकली एडी जो है वो एक ट्रेंच में या एक खंदक में 8 दिन के लिए वॉर एक्टिविटीज़ के दौरान, वॉर के दौरान रहा था, और फिर एकदम से विदाउट ईटिंग, विदाउट ड्रिंकिंग समथिंग, एंड फिर एक दिन इस तरह से होता है कि एक बॉम्ब शेल जो है वहाँ पर आकर गिरता है, वो उनको ब्लो कर देता है इनटू पीसेस, एंड दैट बॉम्ब शेल ब्लू देम, all of them, all 8 people, into pieces, and even their bodies were not buried in a graceful way, in a graceful manner. So that was another thing that was too much shocking to Mrs. Meldon, and she didn't know about that before. Corey, people aren't talk so much about the war, much better forget about it. So Corey once again, he was talking about forgetting about the war activities. उनको भुलाने के बारे में बात कर रहा था, because he wanted to tell about his invention, he wanted to promote his invention, he wanted to revolutionize, he wanted to become selfish and greedy. Of course he is, and he wanted to become wealthy person too, and he wanted to get fame too out of that invention by presenting this invention to his country, to his countrymen, his authorities. Mrs. Meldon, Mrs. Meldon recovering herself, you remember the CEO, mean chief officer of uh, battalion, wrote to me and said that Addy had been killed by a piece of shell and that he had been buried behind the line somewhere. जबकि उसको झूठ बोला गया था, यानी मिसेस मेल्डन को इस तरह से बताया गया था, एक्चुअली ऐसा था नहीं। और यस, आई रिमेंबर मिसेस मेल्डन, दैट कंफर्टेड मी वेरी मच, यानी ये एक तरह से कंफर्ट थी कि उसकी बॉडी को कहीं ना कहीं दफनाया गया था, बैरिक किया गया था, बरीड था। इट मेड थिंग्स इजियर टू थिंक दैट ही वॉजेंट म्यूटिलेटेड, कि उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। म्यूटिलेटेड से मुराद है डिस्ट्रॉय करना, इंटू पीसेस, that even when he was killed, he was still my dear and beautiful boy, a soldier buried by soldiers in a soldier's grave, but he wasn't buried Henry. अब उसको पता चलता है कि उसको बैरी नहीं किया गया था, उसको दफनाया नहीं गया था, बल्कि उसके बॉडी के पार्ट्स जो है वो बिल्कुल वी शुड से दैट स्कैटर हो गए थे। ही वॉज ब्लोन इन टू पीसेस, वाइप आउट हो गई थी उसकी बॉडी। कॉरी wasn't buried, Mrs. Maldon, no, there was nothing to bury. The shell came and there was nothing. They are silent for a moment or two. Don't you think that is horrible, Henry? There was no decency in his death. Oh my God, decency mean we should say that uh, डिसेंट हम कह सकते हैं कि उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि डिसेंट हो, जो कि नाइस हो, या जिसको हम सोबर कह सकते हैं। इन हिज डेथ, बिकॉज हिज बॉडी वाज ब्लोन इनटू पीसेस। ओह माय गॉड, यू टेल मी टू टेक अ ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दैट, माय सन। That they'd been in a little shallow trench, Addy and his men sitting there for days and nights, waiting and waiting and waiting, and then a shell came right into middle of a group of them and destroyed them, utterly destroyed them. 5 of them, nothing left, nothing left. और वहाँ पर वो 5 लोग थे, और वो सब के सब वहाँ पे उनकी डेथ होगी। They were blown into pieces. She sits back in her chair, and both of them are silent. Then the professor goes to his table एंड सिट्स डाउन बिफोर हिज पेपर्स एंड रिटॉर्ट्स। और फिर से प्रोफेसर जो है वहाँ पर रिटॉर्ट्स के सामने जाता है और अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए उनको देखने लगता है, द प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन इन द रिटॉर्ट्स। मिसेस मेल्टन, व्हाट इज योर इन्वेंशन, हेनरी? कोरे, ओह आई थिंक we'd better not talk about it. You are upset. That chap ought not to have told you about Eddie. अब फिर से वो उस पॉइंट को चेंज करता है, उसको कहता है कि उस लड़के को, यानी ये बात नहीं बतानी चाहिए आईडी के बारे में, जिसने मिसेस मेल्टन को बहुत ज़्यादा ग्रीव्ड या दुखी या गमगीन कर दिया। मिसेस मेल्टन, ही थॉट आई न्यू व्हाट इज योर इन्वेंशन, कॉरी, आई टेल एन अदर टाइम। मिसेस मेल्टन, आई वुड लाइक to know something to make war more expeditious, to end it quickly. कॉरी स्विंगिंग अराउंड हर, कॉरी जो है उसके गिर्द एक तरह से चक्कर लगा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो कर रहा है, जैसे वो कंफ्यूज हो। रियली शार्लेट, दिस इज़ द मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन। और अब वो उसको बता रहा है कि ये ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन है। आई डोंट बिलीव माइन यू दैट वार्स विल एवर एंड, नो वी आर ऑल टुगेदर टू पग्निशियस। पग्निशियस से मुराद है एग्रेसिव, यानी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, वायलेंट होना। वी ह्यूमन बीइंग, सो द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू मेक वॉर सो हॉरिबल। और फिर वो कहता है कि सबसे बेहतर काम जो है वो ये है कि जंग को बहुत ज़्यादा हॉरिबल, बहुत ज़्यादा दहशतनाक बनाया जाए। दैट नो नेशन विल एंगेज इन वन अनलेस एब्सोल्युटली ड्रिवन टू इट, ताकि कोई भी नेशन उस वक्त तक इसमें एंगेज ना हो वॉर एक्टिविटीज़ में, जब तक वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ओवरवेलमिंग डिज़ायर ना हो, या बहुत ज़्यादा
ऐसी सिचुएशन हो जिसमें उनके पास और कोई चारा ना हो और कोई ऑप्शन ना हो जंग करने के अलावा. दैट्स वेयर आई कम इन. आई एम गोइंग टू मेक इट horrible, really horrible. Mrs. Melon, yes, sorry, I've got some here. Charlotte, the formula for a bomb that will make war not only stupendously horrible, stupendously mean limitlessly beyond limits, that will be made horrible, यानी बहुत ज़्यादा destructive, दहशतनाक, टेरराइजिंग बना दी जाएगी, बट विल एंड इट ऑलमोस्ट एज क्विकली एज इट बिगन. और फिर वो साथ में ये भी कह रहा है कि ये जंग इतनी जल्दी ख़त्म होगी जितनी जल्दी शुरू होगी. मिसेस मेल्डन ऑन द टेबल, she rises and goes to him. Corey, I have made tests and I have worked out the formula with mathematical precision, and I have discovered a combination of gases and explosives that will obliterate thousands at once. Thousands, मिसेस मेल्टन, thousands. Obliterate का मतलब होता है वाइप आउट करना, मुकम्मल तौर पर उनको ख़त्म कर देना. यानी उसने ऐसा बॉम्ब का फार्मूला बनाया जिसमें से ऐसी गैसेस निकलेंगी एक्सप्लोसिव किस्म की, जो कि किसी भी थाउजेंड्स एट वंस, हज़ारों लोगों को एकदम से ऑब्लिटरेट कर देगी, वाइप आउट कर देगी, यानी ख़त्म कर देगी. मिसेस मेल्टन ऑब्लिटेट देम जस्ट लाइक एरी. अब वो हर चीज़ को अपने बेटे के साथ हम कह सकते हैं कि उनके साथ कनेक्ट कर रही है. ऑफ कोर्स उसका बेटा उसके वार में डेथ हुई है, तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वाइट नेचुरल है. ओ माई डियर शार्लेट, यू रियली मस्ट नॉट बी सो मॉर्बिड. मॉर्बिड मीन अनहेल्दी. अब कॉरी जो है उसको कहता है कि उसके नज़दीक ये तमाम चीज़ें अनहेल्दी हैं उसके लिए, यानी डॉक्टर के लिए, कि उसके सिस्टर इस तरह से सोच रही है. वी हैव नॉट टू डील विद द वर्ड ऑफ फैक्ट. And if this country is going to maintain her position in world, she will have to use every device she can employ to keep her there. I consider that I'm performing highly patriotic act in suffering this in offering this discovery to my country. Now, listen, by means of my formula, we can make a bomb, a big bomb, not one of those little footlings things the Germans used to drop on London, but an enormous bomb full of corrosive gas which will be dropped from a powerful aeroplane or airship. That has not been settled yet, but it is not really my job now. Then the next war breaks out. अब वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि उसका काम जो है बॉम्ब बनाना है, और उसने एक ऐसा बॉम्ब बना दिया है जो कि एक बहुत हाईली पेट्रियाटिक एक्ट है उसके नज़दीक. यानी उसने एक ऐसा बॉम्ब बनाया है जो कि अपने मुल्क को वो प्रेजेंट करेगा, और बाकी काम जो है वो उसका नहीं है बल्कि उसके कंट्री का है. शी या हर यहाँ पर स्टैंड करता है कंट्री के लिए, और उसका कंट्री इसको देखेगा कि उन्होंने किस तरह से इसको करना है, और ये बॉम्ब जो है ड्रॉप किया जाएगा किसी एरोप्लेन से या एयरशिप से. दैट हैज़ नॉट बीन सेटल्ड येट, जो कि अभी तक सेटल नहीं हुआ, बनाया नहीं गया, बट इट इज़ नॉट रियली माई जॉब. तो डॉक्टर कह रहा है कि ये उसकी जॉब नहीं है. ये तब होगा जब नेक्स्ट वॉर ब्रेकआउट होगी, जब नेक्स्ट वॉर एकदम से स्टार्ट होगी. और मिसेस मेल्टन इस बात पे हैरान होती है. शी इज़ इन वंडर, शी इज़ इन सरप्राइज दैट इवन द नेक्स्ट वॉर इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रेक आउट आफ्टर दैट. यानी इसके बाद अभी नेक्स्ट वॉर भी शायद स्टार्ट होगी. उसके नज़दीक ये एक वंडर था, उसके नज़दीक एक शौक था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू मेक एन एंड हियर, एंड वी शैल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट in the next lecture. I think you have got it thoroughly. We should stop here right now.